Morning students, welcome back to our maths class. How are you all? I hope you all are fine and studying at home. Stay home, stay safe. Today in our maths class, let's continue with chapter 3. The name of the chapter is Addition. I hope you have practiced well from the previous video. Let's come up to the concept. Now, exercise 3.4. We have come up with the properties of addition of class 3rd. So properties of addition, let me tell you. The first property, if we add 0 to any number, then its identity will never change. It will remain same. अगर हम किसी भी नंबर में 0 को ऐड करते हैं तो उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, वो एज इट इज सेम रहता है. लुक, 485 plus 0 equals to 485. Clear? Similarly, if we take 2346 plus 0 equals to 2346. So if 0 is added to any number, हमने 0 को किसी भी नंबर में ऐड किया, then it will never change. Clear? Now second, order of the addends doesn't matter. Addend means two numbers which we are adding. Two numbers होते हैं जिनको हम ऐड करते हैं. This is called addend. So whether we will write 24 plus 12 equals to 36, it will give us 36. Whether we change the order of addends, अगर हम इन addends के order को change कर देते हैं, that is 12 plus 24, then also the sum will never change. It will give us 36. हम change नहीं हुआ ना, हमें आंसर क्या मिला? 36. Clear? Now next, this property is doesn't matter while we are regrouping the addends. Means 53 plus 72 plus 12 will be 137. Same. Similarly, अगर हमने इनके ऑर्डर्स को चेंज कर दिया, जो ग्रुप है उनको चेंज कर दिया, 12 plus 72 plus 53, then also will give us 137. So these are the change नहीं, तो ये numbers जो है वो change नहीं हुए. So these are the three properties of addition. Addition की three properties है. So based on these properties, children, we have exercise 3.4. Question is, fill in the blanks using the properties of addition. First, as you can see children, this is based on property 1, the order property. So on the right side, as you can see, we will have 2165 on the both side. हमें 4167 on the both side. हमें 4167 दोनों साइड है, तो ब्लैंक शुड भी कौन सा नंबर नहीं है? 2165. So blank should be 2165. Okay. Now next, let us see this one, 2346 plus 0. So as you can see, this is the property of 0. So your answer is, हम किसी भी नंबर में 0 को ऐड करते हैं तो हमें सेम आंसर मिलता है 2346. It will remain same. Understood? Now next, this is grouped property. As you can see, जो मैंने लास्ट में ग्रुप प्रॉपर्टी बताई थी वही है. As you can see, which number is missing? We have 1126 on both sides. Similarly, we have 6125 on the both side. नंबर दोनों both side है ना, तो blank should be 4125, क्योंकि ये वाला नंबर इक्वल्स टू के उस साइड है लेकिन राइट साइड में नहीं है. क्लियर है स्टूडेंट्स? अंडरस्टूड? सो आई होप this whole exercise and this property are clear for you. Now exercise 3.5. Let's come to another concept. What's problem? Let us read the question. We have to answer. क्वेश्चन नंबर 1 हम CW नोटबुक में करेंगे. जैसा कि आपको पता है, आपके पास 2 नोटबुक्स होती है, CW एंड HW. CW में हम क्वेश्चन नंबर 1
3, 5, 7, 9, 11 एंड 13 करेंगे एंड रिमेनिंग क्वेश्चन HW नोटबुक में करेंगे। HW वर्क आपको सेल्फ करना है। जो क्वेश्चन CW में मैं एक्सप्लेन करूँगी वैसे ही क्वेश्चन HW में होंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 1, अ फ्रूट सेलर हैज़ 2162 एप्पल्स, 1612 मैंगोज एंड 5670 oranges. How many fruits does he have? एक फ्रूट सेलर है, उसके पास में 2162 एप्पल्स है, 1612 मैंगोज है एंड 5670 ऑरेंजेस है। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स, वी हैव टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स विच वी कैन गेट, हमें कहाँ से मिलेगा? बाय एडिंग नंबर ऑफ एप्पल्स, नंबर ऑफ मैंगोज एंड ऑरेंजेस। क्लियर ना स्टूडेंट्स? सो वी ऐड एप्पल्स, मैंगोज एंड ऑरेंजेस, जैसे कि हमने क्लास सेकंड में भी करते थे, सेम वैसे ही करना है। सो देयर आर, हमें इन तीनों को ऐड करेंगे क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है? टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स। हम इन तीनों को ऐड करेंगे जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में एडिशन देखे थे ना, कैरी वाले, हम वैसे ऐड करेंगे। सो देयर आर 9444, अ फ्रूट सेलर हैज़ 9444 फ्रूट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, आपको होमवर्क HW नोटबुक में करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, Abhineet bought a tape recorder for rupees 3225, a radio for rupees 1670 and a cooler for rupees 3500. What was the amount paid by Abhineet? Abhineet है, उसने एक शॉप पे जाके 1 टेप रिकॉर्डर, 1 रेडियो एंड 1 कूलर परचेज किया और उनका अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है। तो उसको टोटल कितना पेड करना है? वी हैव टू फाइंड टोटल अमाउंट पेड बाय अभिनीत। हमें टोटल अभिनीत ने कितना अमाउंट पेड किया वो फाइंड आउट करना है, विच वी कैन गेट बाय एडिंग। हमें वो कहाँ से मिलेगा? विच वी कैन गेट बाय एडिंग ऑफ टेप रिकॉर्डर, रेडियो एंड कूलर। सो वी एड टेप रिकॉर्डर, रेडियो अमाउंट एंड कूलर प्राइस. So we get the total amount paid by Abhineet. That इनको टोटल करेंगे तो टोटल क्या आएगा? The total amount are 8395. ऑलवेज एडिशन कहाँ से स्टार्ट होता है? राइट साइड से स्टार्ट होता है, वंस प्लेस से। ये मैं प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ चिल्ड्रंस। ओके क्लियर? द टोटल अमाउंट आर 8395 रुपीज़. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. Anuj has 1236 stamps. Abhishek has 2165 stamps and Avatar has 4220 stamps. How many stamps do they have in all? अनुज के पास 1236 स्टैम्प्स है, अभिषेक के पास 2165 स्टैम्प्स है एंड अवतार के पास 4220 स्टैम्प्स है. तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड टोटल स्टैम्प्स. टोटल स्टैम्प्स फाइंड आउट करने विच वी कैन गेट बाय एडिंग. हमें कहाँ से मिलेंगे? बाय एडिंग नंबर ऑफ स्टैम्प्स ऑफ अनुज, अभिषेक एंड अवतार. So we add, firstly we will write Anuj has stamps. Anuj के पास कितने stamps हैं? 1236. Same. Similarly Abhishek has stamps and Avatar has stamps. उनका stamps का number लिखेंगे. Then we add. Add करने से क्या होगा? So we get the total number of stamps. हमें इनके add करने से क्या question में क्या पूछ रहा है? Total number of stamps. और हमको इनको add करने से total number of stamps find out हो जाएंगे ना. So there are, तीनों को ऐड करने पे क्या आया? 7621 stamps in all. Clear students? Now next question number 6. You have to do an HW notebook. Now question number 7. Vaibhav had rupees 1230. His father gave him rupees 4125 and uncle gave him rupees 1000. What amount does Vaibhav had now? वैभव के पास कितने रुपीज़ है? 1230 और वैभव के फादर ने उसे और रुपीज़ दिए 4125 एंड अंकल ने उसे कितने दिए? 1000. सो हमें क्या फाइंड आउट करना है?
क्या फाइंड आउट करना है चिल्ड्रन? वी हैव टू फाइंड टोटल अमाउंट डज वैभव हैव. अब वैभव के पास टोटल कितना अमाउंट हो गया, हमें वो फाइंड आउट करना है. सो वैभव हैव, which we can get by adding Vaibhav had rupees and his father gave him and uncle gave him. So we add. Firstly, Vaibhav had rupees. Vaibhav के कितने rupees है? 1230. And add his father gave him rupees. Add uncle gave him rupees. उसे अंकल ने कितने रुपीस दिए थे वो ऐड करेंगे. 4125 and 1000. So we get. इन तीनों को ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा? वैभव हैव. अभी वैभव के पास कितने रुपीस हैं? सो वी ऐड, हम इन तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे. सो वैभव हैव टोटल अमाउंट, वैभव के पास अभी टोटल अमाउंट कितना है? 6355 रुपीज़. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ क्वेश्चन नंबर 9. इन अ सिटी there are 3 small libraries having 4226, 4231 and 1331 books. How many books are in the 3 libraries? एक सिटी में 3 लाइब्रेरीज हैं. 3 लाइब्रेरीज में कितनी कितनी बुक्स हैं आपको क्वेश्चन में मेंशन हो रखा है. आपको टोटल नंबर ऑफ क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड आउट टोटल बुक्स विच वी कैन गेट. हमें कहाँ से मिलेगा? गेट दैम बाय एडिंग बुक्स आर देयर इन द 3 लाइब्रेरीज. सो वी ऐड the book in the first library, second library and third library. Clear? तीनों को ऐड करेंगे. So we get the total books are 9788 in the 3 libraries. Clear students? Now next question number 11. Raghav sold 2367 eggs on one day. His son sold 35 eggs more than him. How many eggs did Raghav's son sell? क्वेश्चन में राघव ने कितने एग्स सेंड किए वो गिवन है, सोल्ड किए वो गिवन है. और एंड उसके सन ने राघव से 35 एग्स एक्स्ट्रा सेल किए. तो क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड आउट टोटल एग्स सोल्ड बाय राघव सन. राघव के सन ने कितने सोल्ड किए वो फाइंड आउट करना है. वी कैन गेट दैम बाय एडिंग. हमें कहाँ से मिलेगा? गेट दैम बाय एडिंग द एग सोल्ड बाय राघव एंड हिज सन. राघव और उसके सन का ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ना. सो वी ऐड राघव सोल्ड एग. राघव ने कितने सोल्ड किए थे एग्स वो, एंड हिज सन सोल्ड एग. सन ने कितने ज़्यादा एग सोल्ड किए थे? 35 ज़्यादा किए थे ना राघव से. सो वी गेट दैम द राघव सन सेल. हमें इससे राघव की सन की सेल मिल जाएगी. सो वी ऐड, हमें इन दोनों को ऐड करना है. राघव सन सेल, राघव के सन ने कितने सेल किए थे एग्स? 2402 एग्स सोल्ड किए. क्लियर स्टूडेंट्स? Now next question number 13. Sacho has 1542 stamps. Rambo has 200 more than Sacho. If Donna has 478 stamps more than Rambo, how many stamps does Donna have? क्वेश्चन में क्या गिवन है? साचो के पास 1542 स्टैम्प्स है और रैम्बो के पास साचो से 200 एक्स्ट्रा स्टैम्प्स है और डोना के पास रैम्बो से 478 स्टैम्प्स एक्स्ट्रा है. तो लास्ट में डोना के पास कितने स्टैम्प्स है? वी हैव टू फाइंड आउट टोटल स्टैम्प्स डज डोना हैव. डोना के पास कितने स्टैम्प्स है? सो वी कैन गेट दैम बाय एडिंग द ऑल स्टैम्प्स. हमें सबको ऐड करना है तो डोना के स्टैम्प्स फाइंड आउट हो जाएंगे. सो वी ऐड साचो हैज़ स्टैम्प्स, रैम्बो हैज़ स्टैम्प्स मोर देन साचो एंड डोना हैज़ स्टैम्प्स मोर देन रैम्बो. हमें इन तीनों नंबर्स को ऐड करना है. सो वी गेट डोना हैव स्टैम्प्स. हमें डोना हैव, इन तीनों को ऐड करने पे डोना के पास कितने स्टैम्प्स है वो फाइंड आउट हो जाएंगे. तो तीनों को ऐड करेंगे 2220. क्लियर स्टूडेंट्स? समझ आया आपको? आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. रीड द क्वेश्चन केयरफुली and to practice in your notebook. Have a good day.